Hello students. So we are going to start our new chapter, that is chapter number 4, linear inequations, and it is the first chapter of unit 2, algebra. In our earlier classes we have studied about the linear equations in one variable as well as in two variables. Let us take an example, like if there is a linear equation 2x plus y is equal to 6. So why it is known as linear equation? Because it contains the variables x and y with degree 1. The degree of this equation is 1. And the sign which is used here is the sign equal to. So in this class, we are going to replace this equal sign with 2x plus y not equal to 6. So in mathematics, to compare the two quantities, we are going to use only two signs. मैथ्स के अंदर दो क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए दो साइन यूज होते हैं, या तो इक्वल का साइन यूज होगा या फिर नॉट इक्वल का साइन होगा. तो इन मैथमेटिक्स इफ यू विल यूज द साइन नॉट इक्वल टू, इट मींस दैट सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल. सपोज x इज नॉट इक्वल टू 2. सो x नॉट इक्वल टू 2 implies that whether x is less than 2 or x is greater than 2. x अगर 2 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि जो x है वो 2 से या तो बड़ा होगा या छोटा होगा. सो देयर विल बी टू पॉसिबिलिटीज. It means that if we will use a sign of not equal to between the two things, then we will get a inequation. Equations means we are going to use the sign of equal to, and inequation means we are not going to sign of equal to, that is we are going to use the sign of not equal to. मतलब हम not equal to का sign use करेंगे. तो let us start this chapter, linear inequations in one variable. Introduction part is, if x and y are two quantities, then both of these quantities will satisfy any one of the following four conditions that are known as relations. अगर x और y दो क्वांटिटी हमारे पास और उनके बीच में हमें एक रिलेशनशिप सेटअप करनी है या रिलेशनशिप सेटअप दी हुई है कोई रिलेशनशिप, तो हम उस रिलेशनशिप को बेसिकली चार तरीके से लिख सकते हैं. देयर आर फोर मेथड टू राइट दैट रिलेशनशिप. द फर्स्ट मेथड इज x greater than y. The second is x greater than equal to y, or we can use x less than y, or we can use x less than equal to y. So there are four possibilities to compare the two quantities, whether it is greater than or less than or greater than equal to or less than equal to. Each of the four conditions given above is an inequation. इसको हम inequation बोलते हैं. जहां पर equal to का साइन यूज नहीं होता है. इक्वल टू का साइन यूज नहीं होगा तो क्या यूज होगा? या तो ग्रेटर देन का साइन यूज होगा, या लेस देन का साइन यूज होगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू यूज होगा, या लेस देन इक्वल टू यूज होगा. ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का साइन है, ये साइन एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट के बीच में यूज हो सकता है, लाइक x लेस देन इक्वल टू 2, और x लेस देन इक्वल टू y, और x ग्रेटर देन इक्वल टू y, और x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 2. मीन्स दो कॉन्स्टेंट्स के बीच में ये जो साइन है हमारा, ये लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू यूज नहीं होता है. वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में या वेरिएबल और वेरिएबल के बीच में ये जो साइन है लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों साइन यूज हो सकते हैं. नाउ इन द सेम वे, each of the following also represent an inequation: x less than 8, x greater than equal to 5, minus x plus 4 less than equal to 3, x plus 8 greater than 4, etc. So the linear equation in one variable, in this linear equation in one variable, if a, b, c are real numbers, if a, b, c are real numbers, then each of the following is called a linear inequation in one variable. We are moving towards our chapter now. अगर ए बी सी हमारे पास कोई भी रियल नंबर्स हैं, ए बी सी जो रियल नंबर्स हैं वो हमारे लिए कॉफिशिएंट्स का काम करेंगे, वेरिएबल के आगे जो नंबर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना. तो यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन है, नेचुरल सी बात है, लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 होती है, तो यहाँ पर लीनियर इनइक्वेशन है तो उसकी डिग्री 1 होगी, लेकिन जो हमारा साइन यूज होगा बीच में वो लेस देन का, ग्रेटर देन का, लेस देन इक्वल टू का, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज होगा. तो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया ax प्लस बी ग्रेटर देन सी, एंड वी विल रीड इट एज ax प्लस बी ग्रेटर देन सी. The second is ax plus b is less than c. The third is ax plus b greater than or equal to c. And the fourth is ax plus b less than equal to or c. In an inequation, the sign less than, greater than equal to or less than equal to are called the signs of inequality. Signs of inequality को हम लोगों ने पिछली छोटी क्लास में भी पढ़ रखा है, और कैसे हम इसको यूज करते हैं. अर्लियर क्लास में 8th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने इसको आगे पढ़ा हुआ है, और अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे. तो एक लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करेंगे? नाउ द कंडीशन राइजेस कि हमें समझ में आ गया कि एक लीनियर इनइक्वालिटी क्या है.
लेकिन हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हाउ टू सॉल्व अ लीनियर inequality. So there are two methods to solve a linear inequality. That is algebraical method. And the second method is graphical method. So we are going to study the algebraical method for solving a linear inequation. तो सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन एल्जेब्रिकली वी नीड टू नो सर्टन रूल्स. हमें कुछ रूल्स समझने पड़ेंगे, कुछ हमें यहाँ पर प्रोटोकॉल सेट करने पड़ेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. सो टू solve a linear inequation means to find the value or values of the variable used in it. एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और वो वैल्यू एक वैल्यू भी हो सकती है रियल नंबर, और वो इनफाइनाइट भी हो सकते हैं. वो डिपेंड करेगा हमारे जो आंसर है उसकी कंडीशन पर. जो क्वेश्चन है उसमें क्या कंडीशन दी है कि एक्स किसको बिलोंग कर रहा है. एक्स हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, एक्स रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, या एक्स इंटीजर को बिलोंग कर रहा है. दैट डिपेंड्स ऑन दैट कंडीशन. Thus, to solve the inequation 3x plus y greater than 8 means to find the value of the variable x. अगर हमें ऊपर क्वेश्चन में सॉल्व लिखा हुआ है, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन भी क्यों ना हो, सॉल्व का मतलब क्या होता है कि हमें वहां पर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है या उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है. Second part, to solve the inequation x 8 minus 5y less than equal to 3 means to find the value of the variable y and so on. जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी वैल्यू को निकालना होता है अगर हमें सॉल्व करने के लिए बोला गया है. The following working rules must be adopted for solving a linear inequation. एक लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा. बहुत सिंपल रूल्स हैं, इनको हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस में आ जाएंगे वो. तो रूल नंबर 1 क्या है? देखो, on transferring a positive term from one side of an inequation to its other side, the sign of the term becomes negative. अब देखो क्या यहां पर समझाया जा रहा है. जैसे 2x plus 3 greater than 7 है, तो जैसे हम नॉर्मली इक्वेशन में डील करते हैं, अगर हम 3 को राइट साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पे प्लस का 3 जो है वो माइनस का 3 हो गया. देखो, तो दिस इनइक्वेशन implies that 2x is greater than 7 minus 3. This is a very simple step. Similarly, in second example, 5x plus 4 is less than equal to 15. So what we are here to find the value of x, means we are required to free the variable x from the coefficients or the terms which are added to it. So we are going to shift this 4, जो यहाँ पे 4 है उसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये प्लस 4 उधर जाके माइनस का 4 हो गया. ये रूल है बस सिंपल. तो 5x लेस देन इक्वल टू क्या हो गया? 15 माइनस 4. सिमिलरली हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल भी दिया है आगे, 23 इज ग्रेटर देन 4x प्लस 15. तो आपको यहाँ पर ये डिफरेंट एग्जांपल्स क्यों दिए हैं? क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए हमें जो वेरिएबल है उसको फ्री करना है. सिंपल बात है कि वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है. अब वेरिएबल के साथ क्या हो रहा है? वेरिएबल के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके साथ कुछ ऐड भी हो रहे हैं नंबर. तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो नंबर प्लस या माइनस हो रहा है उनको शिफ्ट करेंगे, फिर जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उनको शिफ्ट करेंगे. तो अभी जो हम रूल पढ़ रहे हैं वो जो नंबर प्लस माइनस हो रहे हैं उसके साथ उनको शिफ्ट करा जा रहा है, और नेक्स्ट रूल में शायद जो नंबर मल्टीप्लाई होंगे उनको रिमूव करेंगे. तो ये जो एग्जांपल है इसमें देखो 23 ग्रेटर देन 4x प्लस 15 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 15 को शिफ्ट करेंगे, और 15 हमारा राइट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में जाके 15 माइनस 15 बन गया, तो 23 माइनस 15 हो गया, ग्रेटर देन 4x हो गया, एंड सो ऑन. सो दिस इज द फर्स्ट रूल कि यहाँ पर जो भी कांस्टेंट टर्म ऐड हो रही है हमारे वेरिएबल टर्म के अंदर, उसको हम दूसरी साइड में ले जा सकते हैं, लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में. सिंपली उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट रूल इज on transferring a negative term. Now, rule number 2, on transferring a negative term from one side of an inequation to its other side, the sign of the term becomes positive. That is the vice versa, the same rule it is itself. तो यहाँ पर क्या बोला गया है? जैसे पहला एग्जांपल लिया है 2x minus 3 greater than 7, तो यहाँ पे माइनस 3 को जब राइट में ले जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा. तो बहुत सिंपल पॉइंट है. तो 2x क्या हो गया? ग्रेटर देन 7 प्लस 3 हो गया. सिमिलरली 5x minus 4 लेस देन इक्वल टू 15 है, तो हमें मालूम है कि हमें सबसे पहले जो टर्म प्लस या माइनस हो रही है उसको हमें शिफ्ट करना है. तो माइनस 4 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड में, तो ये प्लस 4 हो गया, और बाकी सारी चीज ऐसी लिखी जाएंगी. साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी, पूरा चैप्टर साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे बेस्ड है, इस पे ध्यान देना है. तो आप देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? सेम 23 ग्रेटर देन 4x माइनस 15 है, तो हमें पता है कि 4x के साथ माइनस 15 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें माइनस 15 को शिफ्ट करना है दूसरी साइड में. माइनस 15 राइट में, तो लेफ्ट में जाके प्लस 15 हो गया, तो 23 प्लस 15 ग्रेटर देन 4x हो गया, एंड सो ऑन. नाउ हियर कम्स द रूल नंबर 3.
So the rule number 3 is, if each term of an inequation be multiplied or divided by the same positive number, the sign of the inequality remains the same. अगर हम किसी इनइक्वालिटी को, इन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं सेम पॉजिटिव नंबर से या डिवाइड करते हैं पॉजिटिव नंबर से, तो उसका जो साइन है लेस देन या ग्रेटर देन का वो चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है. दैट इज इफ p इज पॉजिटिव एंड p इज नॉट इक्वल टू 0. यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि वो नंबर पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है. तो अगर हमारे पास एक और नेचुरल सी बात है वो नंबर 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 से अगर हम डिवाइड करेंगे किसी क्वांटिटी को तो वो नॉट डिफाइंड भी हो सकती है. तो यहाँ पर जो हमने नंबर लिया है p, वो एक पॉजिटिव नंबर है और हमारे पास एक इनइक्वालिटी है x लेस देन y. इन द फर्स्ट एग्जांपल लेट अस सी x लेस देन y, एंड इफ वी विल मल्टीप्लाई द इनइक्वालिटी बाय बोथ साइड्स बाय p, देन द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम. दिस इज द रूल एक्चुअली, px इज लेस देन py. और वी कैन डिवाइड द इनइक्वालिटी, बेसिक इनइक्वालिटी x लेस देन y बाय p, देन x अपॉन p इज लेस देन y अपॉन p. Similarly, we can remove the constant also from the both sides. If the constant is same and it is positive, then the rule will be applied vice versa. Now, in second example, x is greater than y implies that. Now, if we will consider the inequality x greater than y and we will multiply both sides by the same positive number p, then the sign of the inequality remains same. That is, px is greater than py. मतलब हम अगर p से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में तो साइन हमारा चेंज नहीं होगा. ये सिंपल सा इन्होंने यहाँ पे बात बताई है. इसी तरीके से हम यहाँ डिवाइड भी कर सकते हैं कि x डिवाइडेड बाई p इज ग्रेटर देन y अपॉन p. एंड इफ द इनइक्वालिटी इज ऑफ द फॉर्म x लेस देन इक्वल टू y और x ग्रेटर देन इक्वल टू y, द सेम थिंग विल बी हैपन. लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर दिस to understand it completely. X less than 6. So what we have done here, if we will multiply both sides by 4, then multiplying by left side by 4 means 4x, and it is less than 4 into 6, that is 24. Similarly, x greater than 5 implies that 3x is greater than 3 into 5. Multiplying both sides by 3, the sign of the inequality remains same. X less than 2, and we will divide both sides by 10, then we will get x upon 10 is less than 2 upon 10, and so on. That is, the sign of the inequality remains same if we will divide or multiply by the same positive number. Now the next rule is rule number 4. Rule number 4. So rule number 4 is, if each term of an inequation be multiplied or divided by the same negative number, the sign of the inequality reverses. अगर हम किसी इनइक्वालिटी में दोनों साइडों में किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है. अगर वो ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, और वो लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा. लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा. इस चीज को हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं. x लेस देन y हमारे पास इनइक्वालिटी है और इसको हमने एक नेगेटिव नंबर p से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में, तो साइन देखो रिवर्स हो गया, px इज ग्रेटर देन py हो गया. और इसी तरीके से अगर हम इस इनइक्वालिटी को x लेस देन y को एक नेगेटिव नंबर p से डिवाइड करेंगे तो x अपॉन p जो है वो ग्रेटर देन y अपॉन p हो जाएगा. इस चीज को हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं. सेकंड पॉइंट में समझाया गया है कि x ग्रेटर देन y अगर हमारे पास इनइक्वालिटी है और इसको नेगेटिव नंबर p से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये px लेस देन py हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा. और x ग्रेटर देन इक्वल टू y को अगर हम p से डिवाइड करते हैं नेगेटिव नंबर से, तब भी हमारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर नेगेटिव नंबर से दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा. और इसी चीज को हम रिवर्स ऑर्डर में भी अगले रूल में पढ़ेंगे कि अगर हम किसी नेगेटिव नंबर को दोनों साइड से रिमूव करते हैं तब भी साइन हमारा इनइक्वालिटी का चेंज होगा. मतलब रूल जो है वो दोनों तरीके से वाइस वर्सा लग सकता है. एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं. x लेस देन 6 है और मैंने दोनों साइड में -4 से अगर मल्टीप्लाई किया तो ये साइन है इनइक्वालिटी का वो रिवर्स हो जाएगा. तो -4x ग्रेटर देन -4 into 6 हो जाएगा. x ग्रेटर देन 5 अगर है और अगर मैं दोनों साइड में -3 से मल्टीप्लाई करूं तो देखो साइन यहाँ पे क्या हो गया, रिवर्स हो गया. -3x इज लेस देन -15 हो जाएगा. x ग्रेटर देन इक्वल टू y है अगर और मैं -2 से डिवाइड करूं इसको तो x अपॉन -2 इज लेस देन y अपॉन -2 हो जाएगा, एंड सो ऑन. ये सारे रूल्स आप बेसिकली शायद 8th क्लास में पढ़ चुके हैं. इसको हम एग्जांपल लेके भी समझ सकते हैं. ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज हमारे पास 5 जो है वो 2 से बड़ा नंबर है, 5 इज ग्रेटर देन 2 है. और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इस 5 ग्रेटर देन 2 को दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो 2 into 5 और ये हो जाएगा 2 into 2, तो 2 into 5 हो गया 10 और 2 into 2 हो गया 4. तो आप यहाँ समझ सकते हो कि 10 जो है वो 4 से ग्रेटर है. तो देखो साइन सेम रहा.
इसका मतलब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो साइन है वो हमारा क्या होता है, सेम रहता है। और इसी इनइक्वालिटी में अगर हम -2 से मल्टीप्लाई कर दें, -2 × 5 कर दें और यहाँ -2 × 2 कर दें, देखो मैंने साइन पहले नहीं लगाया, साइन हमेशा बाद में लगाते हैं जब आंसर आ जाता है, जब हम नंबर्स के अंदर डील करते हैं इनइक्वालिटी में, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज हैं। तो -2 × 5 हो गया -10 और -2 × -2 हो गया -4। तो हम यहाँ से इजीली देख सकते हैं कि -4 -10 से बड़ा है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये बात समझाई जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना। अब आता है रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 क्या है, देखो यहाँ पे रूल नंबर 5 जो है इसके अंदर अब इनइक्वालिटी को, इन दिस रूल नंबर 5, इफ द साइन ऑफ द ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वेशन इज चेंज्ड, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड। वो कह रहे हैं दोनों साइडों में अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें या हम दोनों साइडों में -1 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा। देखो जैसे फर्स्ट एग्जांपल में लिखा है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि -x > 5 है। तो देखो जब हम x की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करने जा रहे हैं, इफ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द इनइक्वालिटी, देन द साइन ऑफ x शुड बी पॉजिटिव। अगर हम x को फ्री कर रहे हैं हर एक चीज से तो x का साइन पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहला एग्जांपल जो है -x > 5, इसके अंदर x के साथ माइनस लगा हुआ है तो हमें -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या -1 से दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम मल्टीप्लाई वाली बात को समझते हैं। अगर हम -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ तो साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और -x × -1 x बन गया, साइन रिवर्स हो गया और 5 × -1 -5 हो गया। तो आंसर क्या निकला, x < -5। सेकंड एग्जांपल में देखिए 3y ≤ 15 है, 3y ≤ 15 है और दोनों तरफ हमने सपोज -1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन रिवर्स हो जाएगा और ये हो जाएगा -3y > -15। सिमिलरली इन थर्ड एग्जांपल ऑल्सो, इफ -2y इज लेस देन -7 है, अगर -2y लेस देन -7 है और मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं तो आप देखो साइन रिवर्स हो जाएगा और -2y + 2y बन जाएगा और -7 + 7 बन जाएगा एंड सो ऑन। इसी चीज को हम अलग तरीके से रूल नंबर 6 में भी समझते हैं। इफ बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वेशन आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, वो कह रहे हैं दोनों साइडें अगर पॉजिटिव इनइक्वेशन की या दोनों साइडें नेगेटिव हैं, देन ऑन टेकिंग देयर रेसिप्रोकल्स द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्सेस। इस बात को एक एग्जांपल से समझ के फिर हम दोबारा पढ़ेंगे यहाँ पे। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हमारे पास एक नंबर है, सेम एग्जांपल लेते हैं, 5 इज > 2। तो 5 > 2 में हम देख रहे हैं कि दोनों साइडें पॉजिटिव है हमारी, और अगर हम यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दें, मतलब इसको 1/5 कर दें और इसको 1/2 कर दें, तो हमें साफ नजर आ रहा है कि 1/2 जो 1/5 से बड़ा है, मतलब इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। इसी बात को यहाँ समझाया गया है कि इफ x and y आर बोथ ईदर पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, सपोज x इज > y है, तो जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/x < 1/y हो जाएगा। मतलब अगर दोनों साइडों का साइन सेम है तो रेसिप्रोकल करने पर साइन रिवर्स हो जाता है। यहां पर सेकंड एग्जांपल में लिखा है x < = y, तो x < y है, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/x > 1/y हो जाएगा, > साइन रिवर्स हो गया। अगर x > y है और हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे तो दोनों तरफ से हमारी वैल्यूज पॉजिटिव है तो 1/x < 1/y एंड सो ऑन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमें समझना है कि एक इनइक्वालिटी का साइन जो है वो कब चेंज होता है, कब रिवर्स होता है, जब हम दोनों साइडों में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें, पहली कंडीशन। दूसरी कि जब हम एक इनइक्वालिटी में रेसिप्रोकल करेंगे और दोनों साइडों का साइन सेम होना जरूरी है। अगर दोनों पॉजिटिव है दोनों साइडें या दोनों साइडें नेगेटिव हैं, तब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो अभी तक हमने जितने भी रूल्स हैं इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के वो सारे पढ़ लिए हैं, और मुझे लगता है कि जब हम रूल्स को पढ़ लेंगे तो हमारी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आसान हो जाएगी। आई होप कि आप सारे बच्चों को ये रूल समझ में आ गए होंगे, और अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना है, दैट इज द रिप्लेसमेंट सेट एंड द सॉल्यूशन सेट। रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट क्या होता है इसको समझते हैं। The set from which the value of the variable x is to be chosen is called replacement set, and its subset whose elements satisfy the given inequation is called the solution set. मतलब जब हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो हमें एक कंडीशन दी होगी क्वेश्चन के अंदर कि जो x की वैल्यू वो कहाँ से लेनी है हमें, तो वो हमारा रिप्लेसमेंट सेट हुआ। और जो x की वैल्यूज हमारी फाइनली उस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए आंसर की तरीके से आएंगी वो सारे सॉल्यूशन सेट होंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या बात समझ में आ रही है हमें कि जो रिप्लेसमेंट सेट है, रिप्लेसमेंट सेट, इसके अंदर से हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा। इसीलिए वो इसमें यहां पर बोल रहे हैं कि जो रिप्लेसमेंट सेट है, सॉल्यूशन सेट उसका सबसेट है।
सॉल्यूशन सेट इज अ सबसेट ऑफ रिप्लेसमेंट सेट, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल। लेट द गिवन इन इक्वेशन बी x लेस देन 3। x लेस देन 3 एक इक्वेशन है। तो उन्होंने कहा कि क्वेश्चन में कि रिप्लेसमेंट सेट आपको नेचुरल नंबर लेना है। तो हम इसको एक नंबर लाइन पे समझते हैं। सपोज वी हैव कंसीडर अ नंबर लाइन फॉर दिस फर्स्ट पार्ट। ये एक नंबर लाइन है हमारे पास, इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास, अब वो कह रहे हैं कि x एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ पर हमारे पास है 1, 2, 3 and so on. These are all natural numbers. So here in the question it is given that x is less than 3 and the replacement set is natural number. That is the set of natural numbers. Set of natural numbers. तो solution set क्या होगा? Solution set का मतलब हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो हम देखेंगे कि नंबर लाइन के ऊपर, ये नंबर लाइन जो है हम अपने रेफरेंस के लिए बना रहे हैं। तो नंबर लाइन पे अगर हम देखेंगे कि x लेस देन 3 कौन से नंबर हैं, तो वो सिर्फ दो ही नंबर है, 1 and 2। अगर हम यहाँ देखेंगे नंबर लाइन पे तो 3 से छोटे नंबर सिर्फ दो ही है नेचुरल नंबर, दैट इज 1 and 2। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट निकल के आएगा वो निकलेगा, द सॉल्यूशन सेट इज 1, 2 इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको। आपको मालूम है सेट के अंदर रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दो फॉर्म्स होती हैं। तो 1, 2 हमारा आंसर हो गया इसका। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर रिप्लेसमेंट सेट दिया हो होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, अब यहाँ रिप्लेसमेंट सेट हमारा सेट ऑफ होल नंबर्स है, तो हम एक नंबर लाइन यहाँ पे बना लेते हैं और इसके अंदर होल नंबर प्लॉट कर लेते हैं। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0, 1, 2, 3 and so on. Now the given question is x less than 3. So how many whole numbers are there on this number line which are less than 3? So there are 3 whole numbers, that is 0, 1, 2. So the replacement set given is whole number and the solution set will be in रोस्टर फॉर्म, दैट इज 0, 1, 2। तो 0, 1, 2 हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का जब होल नंबर दिया है। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर द सेम क्वेश्चन, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज इंटीजर्स, इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड बाय z और i, द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो रिप्लेसमेंट सेट क्या है? जहां से हमें आंसर को लेना है, और सॉल्यूशन सेट है एक्चुअली आंसर। तो यहाँ पर अगर इंटीजर्स हैं तो हम यहाँ पर इंटीजर्स को भी प्लॉट कर सकते हैं। ये समझने के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज आप लोग को जरूरत नहीं है इसको ड्रॉ करने की। अगर हम इंटीजर्स की बात करेंगे तो इंटीजर्स हमारे दोनों साइडों के अंदर उतने ही इक्वली होते हैं। तो ये -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पर हम इनफाइनाइट इंटीजर शो कर सकते हैं। एंड सिमिलरली 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मैं 3 क्यों प्लॉट कर रहा हूँ? क्योंकि इनइक्वलिटी में वो नंबर जो 3 दे रखा है x लेस देन 3 वो दिखाना जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द रिप्लेसमेंट सेट इज इंटीजर। तो 3 से छोटे इंटीजर कितने हैं? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर which are less than 3 and they are integers? So there are so many, they are infinite. So the solution set will be in roster form and it will start from infinity, that is dash 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 -2 -1 0 1 2. You all are quite aware of the forms or how to write a number in a set form, that is a set builder or roster form. लेकिन but if the replacement set is set of real numbers, अगर real number हमारे पास रिप्लेसमेंट सेट आता है तो रियल नंबर को आपको मालूम है रोस्टर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो रियल नंबर को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा। द सॉल्यूशन सेट कैन ओनली बी डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म, दैट इज x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज लेस देन 3। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि रियल नंबर होते हैं इनफाइनाइट और उनको सबको हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है 9th स्टैंडर्ड ऑल्सो, इन 8th स्टैंडर्ड ऑल्सो, since there are so many real number between the two numbers, that is 1 and 2 or -1 0, so we cannot write the real number in roster form. That is why we have written the solution in set builder form. Now let us take some examples to understand this concept clearly. The question number 1, or rather example 1. The example 1 is, if the replacement set is the set of natural numbers, find the solution set of the following inequalities. तो पहला जो हमारा पार्ट है, the first part is 3x plus 4 is less than 16. तो हम क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम अपने रूल्स को लगाते जाएंगे और लास्ट में जो सॉल्यूशन सेट है उसको हम रिप्लेसमेंट सेट से देखेंगे कि किस तरीके से निकालना है। तो 3x plus 4 less than equal to 16 है, तो जब भी हम किसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो जो वेरिएबल है उसको फ्री करना होता है। तो वेरिएबल को फ्री करने का जो स्टेप है वो पहला ये है कि आप देखो वेरिएबल में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद क्या प्लस माइनस हो रहा है। तो नेचुरल सी बात है, जो स्टेप बाद में आया वो पहले रिमूव होगा। मतलब 3x plus 4 अगर लिखा है तो पहले 4 को रिमूव करेंगे, जो चीज प्लस या माइनस हो रही है उसके अंदर। तो आप देखो 4 को हम वहां शिफ्ट कर देंगे और आपको पता है कि एक पॉजिटिव नंबर को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाता है, -4 हो जाता है और हमारा इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है, दैट इज रूल नंबर 1। सो 3x is less than 16 - 4 and further 3x is less than 12.
इसको सिंप्लीफाई कर दिया हमने। अब हम 3 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। अब ये जो इनइक्वालिटी है दोनों साइड में पॉजिटिव है, और 3 एक नंबर जिससे हम डिवाइड करने वाले हैं वो पॉजिटिव है। 3 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि हमें x को फ्री करना है, और x के आगे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। x का कोफिशिएंट क्या है? +3 है। तो एक पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड में अगर डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है? सेम रहता है, एंड दैट इज रूल नंबर 3। अगर यही -3x होता तो -3 से डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है अगर दोनों साइड में इनइक्वालिटी सेम साइन है। तो यहां पर हमने 3 से डिवाइड किया तो 3x/3 साइन सेम रहेगा 12/3। तो आंसर क्या हो गया? x लेस देन 4। अब ये जो x लेस देन 4 है इसको हमें सॉल्यूशन सेट के टर्म्स में लिखना है, और रिप्लेसमेंट सेट क्या है? देखो, since the replacement set is set of natural numbers, so how many natural numbers are there which are less than 4? And there are only 3 natural numbers, that is 1, 2 and 3. So the solution set will be 1, 2, 3. I think it is quite easy. Now the second part, 8 minus x is less than 4x minus 2. अब यहाँ देखेंगे हम कि जो हमारा वेरिएबल पार्ट है वो दो जगह पर है और कांस्टेंट भी दो है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या करना है, जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड में ले आना है, चाहे दोनों को एक लेफ्ट साइड में ले आओ वेरिएबल्स को, चाहे दोनों को राइट साइड में ले आओ। तो यहाँ पे क्या किया हमने, 4x को शिफ्ट किया लेफ्ट में, तो 4x पॉजिटिव था तो लेफ्ट में आके नेगेटिव हो गया, और -x पहले से ही नेगेटिव है तो -x - 4x हो गया, और जो कांस्टेंट है वो -2 था तो 8 को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया तो -8 हो गया। हम यहाँ पे x को भी शिफ्ट कर सकते थे। मैं सेम क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको जब मैं x को शिफ्ट करूंगा, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया सॉल्व होकर -5x इज लेस देन -10। यहां पर इन दिस इनइक्वालिटी the coefficient of x is -5 and we are required to remove this coefficient, so we need to divide the inequation by that is -5 both sides, since the coefficient of x is -5 and the sign of the inequality on the both sides is negative, and we are going to divide this inequality by -5. So by applying rule number 4 the sign of the inequality reversed, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर से हमने क्या कर दिया, दोनों साइड में डिवाइड कर दिया, और इनइक्वालिटी का साइन नेगेटिव है पहले से ही, तो ये हो जाएगा -5x - 5 ग्रेटर देन -10/-5। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद हमें रूल्स अपने आप लगाने आ जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब हम देखते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट सेट क्या था। रिप्लेसमेंट सेट नेचुरल नंबर थे। अब हमें देखना है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो 2 से बड़े नेचुरल नंबर कौन से हैं? इक्वल का साइन लगा है, इस पर ध्यान देना है, साइन यहाँ पे इक्वल का लगा है तो 2 को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 2 और 2 से बड़े नेचुरल नंबर लिखने हैं, तो वो आंसर क्या होगा? 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, एंड दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी द ऑल्टरनेटिव मेथड आल्सो। सो the question was -8 minus x is less than equal to 4x minus 2. So in this alternative method we will shift -x to the minus x to the right side. So minus x to the right side means I'll solve it practically. The question is 8 minus x less than equal to 4x minus 2. So we will shift -2 to the left side, that is 8 plus 2 is less than equal to 4x plus x. So this will become 8 plus 2 is 10 is less than equal to 5x. अब हम यहाँ देखेंगे कि दोनों साइड में हमारे इनइक्वालिटी का साइन सेम है, पॉजिटिव साइन है, और हमें x को फ्री करना है, तो हमें यहाँ पर दोनों साइडों में 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले डिवाइड कर देते हैं ऐसे करके, और अब हम देखते हैं कि हमारा रूल कौन सा लग रहा है कि यहाँ पे हमने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया दोनों साइड में, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा x, 5 से 5 कैंसिल हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। द सेम आंसर इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मीन्स द नंबर्स विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड द नंबर हेयर द x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा? 2, 3, 4, 5 एंड 6। नाउ एग्जांपल नंबर 2 इज देयर। सो इन दिस एग्जांपल, if the replacement set is the set of whole numbers, find the solution set of the following inequalities. तो फर्स्ट हमारी इनइक्वालिटी है 5x plus 4 less than 24। 5x plus 4 less than 24, तो यहाँ पर हम 4 को शिफ्ट करेंगे तो 5x less than 24 minus 4 हो जाएगा। दोनों साइडों में 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5x less than 20 हो गया सिंप्लीफाई करके, क्योंकि दोनों साइड में साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो हम यहाँ पर x को फ्री करेंगे 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे दोनों साइडों में, तो क्या हो जाएगा? x less than 20/5 एंड द फाइनल आंसर विल बी x less than equal to 4। तो x लेस देन इक्वल टू 4 है, तो 4 को इंक्लूड करना पड़ेगा। और हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या है? सिंस द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर्स, तो ऐसे कितने होल नंबर है जो लेस देन इक्वल टू 4 है, तो 4 को इंक्लूड करना पड़ेगा, और 4 से छोटे नंबर बताने हैं तो 0, 1, 2, 3, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया।
सेकेंड पार्ट जो है वो है 4x माइनस 2 इज लेस देन 2x प्लस 10। तो ये हमारी चॉइस है कि हम 2x को शिफ्ट करेंगे कि 4x को शिफ्ट करेंगे। तो एक जनरल रूल बना लो कि छोटे नंबर को बड़े नंबर के पास लेके जाओ वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर 4x बड़ा है तो हमने 2x को शिफ्ट कर लिया, तो 4x माइनस 2x इज लेस देन 10 प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2 को हम राइट साइड में ले जाएंगे और 2x को लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो ये हो जाएगा 2x लेस देन 12 और दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो x लेस देन 6 हो जाएगा। तो रिप्लेसमेंट सेट हमारा होल नंबर था, तो लेस देन 6 का मतलब है 6 को इंक्लूड नहीं करना है। तो 6 से छोटे होल नंबर्स कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया। नाउ द थर्ड एग्जांपल, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -6 एंड 8, -6 और 8 के बीच के इंटीजर कंसिडर करने, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो पहली इनइक्वालिटी हमारी वो है 6x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 9 प्लस x। तो 6x के पास हमने x को शिफ्ट किया तो 6x माइनस x हो गया, ग्रेटर देन का साइन सेम रहेगा और 9 प्लस 1 हो गया। तो ये हो जाएगा 5x ग्रेटर देन 10। सॉल्व करने के बाद दोनों तरफ 5 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा रिप्लेसमेंट सेट था वो क्या था। रिप्लेसमेंट सेट था इंटीजर्स का सेट जो कि -6 और 8 के बीच में लाई करने चाहिए। तो इसके लिए आप चाहो तो यहाँ पर एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। आप यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लो रफ के अंदर, और यहाँ पे -6 है हमारे पास और यहाँ पर 8 है। -6 छोटा है, 8 बड़ा है, नेचुरल सी बात है -6 पहले आएगा। अब यहाँ पर आप जो नंबर n के बीच में इनको प्लॉट कर सकते हो। अब वो कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 2 से बड़े नंबर हमें बताने पड़ेंगे। यहाँ पे 2 भी प्लॉट कर लेते हैं। तो हमें कौन से नंबर चाहिए? ऐसे नंबर जो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और लेस देन 8 हो गए। तो इसका मतलब हमारे आंसर कौन से हो जाएंगे? हमारे यहाँ पे जो आंसर हो जाएंगे सॉल्यूशन सेट के अंदर वो हो जाएंगे 2 3 4 5 6 7। 2 से, क्योंकि इक्वल का साइन लगा है तो इक्वल का साइन लगा है तो 2 को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 2 से लेके 8 तक जाना है और 8 को इंक्लूड नहीं करना है। तो इसका मतलब 8 से छोटा नंबर कौन सा है? 7 है जो इंटीजर है। तो 2 3 4 5 6 7 आंसर हो गया। जो सेकंड पार्ट है वो देखो इसका क्या है, 15 माइनस 3x इज ग्रेटर देन x माइनस 3। 15 माइनस 3x ग्रेटर देन x माइनस 3। तो हमने इस x को शिफ्ट कर लिया लेफ्ट में, तो -3x माइनस x ग्रेटर देन क्या हो गया? -3 माइनस 15। तो ये -4x ग्रेटर देन -18 हो गया। -4x ग्रेटर देन -18 है। अब यहाँ पे रूल का ध्यान देना है कि दोनों तरफ इनइक्वालिटी का साइन सेम है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइडों में, क्योंकि साइन सेम है अगर दोनों तरफ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि x का कॉफिशिएंट क्या है। तो x का कॉफिशिएंट -4 है, तो दोनों साइड में -4 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये रूल कहता है, ये रूल नंबर 4 है हमारा। तो हमने -4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड में, तो दोनों तरफ जो साइन है इनइक्वालिटी का वो पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो है वो देखना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। अगर दोनों तरफ नेगेटिव साइन है और नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, ये रूल कहता है, ठीक है ना। तो -4x अपॉन -4 हो गया, लेस देन -18 अपॉन -4 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x लेस देन 4.5 हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर ही दिया था पहले हमने। अब हमें रिप्लेसमेंट सेट क्या दिया था? ऐसे इंटीजर जो -6 और -8 के बीच में लाई करते हैं। तो हमें अब क्या करना है, देखो यहाँ पर फिर दोबारा से हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। यहाँ पर हमने शो किया -6 को और 8 को शो कर दिया, और हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो x लेस देन 4.5 शो कर रही है। तो हम यहाँ पे बीच में 4.5 शो कर देते हैं। अब लेस देन 4.5 कौन से नंबर हैं? जो -6 और 4.5 के बीच में लाई करेंगे। -4.5 से छोटे, लेकिन -6 और -8 के बीच में आंसर को लेना है। तो -6 और 4.5 के बीच में कौन कौन से इंटीजर लाई करते हैं वो देखते हैं। तो -6 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है हमारे पास? जो बड़ा है, सॉरी, -6 से बड़ा इंटीजर कौन सा है? -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0 1 2 3 4 तक जाएंगे, क्योंकि 4.5 इंटीजर नहीं है। 4.5 से छोटा इंटीजर 4 है। तो -6 और 4.5 के बीच में जितने इंटीजर हैं वो सारे हम सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे। इसका ऑल्टरनेटिव मेथड क्या बताया गया है कि यहाँ पर इन्होंने जो हमने अभी पिछले उसमें एग्जांपल में किया था कि जो -3x है उसको हमने शिफ्ट किया। तो ऑल्टरनेटिव मेथड में हम किसी भी वेरिएबल पार्ट को दोनों साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। इसको आप इजीली समझ सकते हो। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 4 पर। एग्जांपल नंबर 4 क्या है? इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये काफी ध्यान से समझना आप लोग। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ फर्स्ट पार्ट 5 माइनस 3x लेस देन 11। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या है? 5 माइनस 3x लेस देन 11 है। तो 5 माइनस 3x लेस देन 11 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो नेचुरल सी बात है x एक जगह पर दिया हुआ है, तो -3x को उसे वहीं रखेंगे और 5 को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड में। तो 5 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 11 माइनस 5 हो जाएगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, क्योंकि रूल कहता है कि साइन जो इनइक्वालिटी का है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम शिफ्टिंग करते हैं। डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं सिर्फ। तो ये हो जाएगा -3x लेस देन 6। अब ध्यान देना है, -3x लेस देन 6 है और हमें x का कोफिशिएंट -3 दिया हुआ है। दोनों साइड में इनइक्वालिटी का जो साइन है वो जो है वो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने जा रहे हैं यहाँ पे।
तो माइनस थ्री एक्स लेस देन सिक्स है, तो माइनस थ्री एक्स लेस देन सिक्स में माइनस थ्री से दोनों साइड में डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये रूल नंबर 4 कहता है कि इनइक्वालिटी का साइन क्या होना है, चेंज होना है। तो माइनस थ्री एक्स अपॉन माइनस थ्री इज ग्रेटर देन सिक्स अपॉन माइनस थ्री हो गया, और यहां से पता लगा कि जो x है वो ग्रेटर देन माइनस टू है। जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको, साइन को ध्यान से चेंज कर देना है, तो x ग्रेटर देन माइनस टू है। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो रिप्लेसमेंट सेट है, सिंस द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो रियल नंबर के केस में जो सॉल्यूशन सेट है वो कौन सी फॉर्म में लिखा जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन सेट क्या होगा, x सच दैट x इज ग्रेटर देन माइनस टू, जो हमारा आंसर आया, एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। सिमिलरली जो इसका सेकंड पार्ट है, 8 प्लस 3x इज ग्रेटर देन 28 माइनस 2x, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 2x को 3x के पास लेके आ गए, तो 3x प्लस 2x इज ग्रेटर देन 28 माइनस 8 हो जाएगा। 3x प्लस 2x 5x हो गया, इज ग्रेटर देन 20 हो गया। दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि साइन पॉजिटिव है, उससे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। x का कॉफिशिएंट क्या है, प्लस 5 है, प्लस 5 को हटाना पड़ेगा x को फ्री करने के लिए, प्लस 5 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड में, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा और ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 4। तो यहां पर जो सॉल्यूशन रिप्लेसमेंट सेट था वो रियल नंबर था, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट क्या होगा, x सच दैट x ग्रेटर देन 4 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। नाउ क्वेश्चन 5 इज देयर, द क्वेश्चन 5 इज सॉल्व x by 2 minus 5 is less than x by 3 minus 4 where x is a positive odd integer। तो यहाँ पे x जो है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो x by 2 minus 5 लेस देन x by 3 minus 4 दिया हुआ है, तो हमने जो x वाली टर्म है उनको एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे, तो हो जाएगा x by 2 minus x by 3 इज लेस देन माइनस 4 प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि जो नंबर्स हैं उनको एक साइड में रखा जाता है, वेरिएबल को एक तरफ करते हैं, तभी तो x की वैल्यू निकलेगी। x को एक जगह पे लाना है, तो इसको हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम हमारा 6 आ गया और ये हो जाएगा 3x माइनस 2x इज लेस देन 1, क्योंकि माइनस 4 प्लस 5 1 हो गया। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ऊपर x बचेगा, इसको मैं स्टेप को यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो रहा है x अपॉन 6 इज लेस देन इक्वल टू 1, और आपको पता है कि x को फ्री करना है, यहाँ पे 6 डिवाइड हो रहा है तो दोनों तरफ 6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा x अपॉन 6 इंटू 6 और 1 इंटू 6। आपको पता है पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहता है, तो हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 6। वो चीज यहाँ पे शो करी, x लेस देन इक्वल टू 6। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि x एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, x एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, कंडीशन क्या है, x लेस देन इक्वल टू 6। तो 6 और 6 से छोटे पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन से होंगे, तो हम देखते हैं कि 6 से छोटे पॉजिटिव ऑड इंटीजर 1 3 5 ही होते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन सेट सेट बिल्डर फॉर्म की जगह पर रोस्टर फॉर्म में लिखा जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक नंबर्स आंसर है हमारे, x इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो ऑड इंटीजर कौन से जो 6 से छोटे हैं, 1 3 5 है। इसमें 6 के साथ इक्वल का साइन लगा है, लेकिन 6 को इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑड नंबर नहीं है, इसीलिए 6 का कोई कहाँ पे काम नहीं आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन 2y माइनस 3 इज लेस देन y प्लस 1 इज लेस देन y 4y प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 4y प्लस 7 इफ y बिलोंग्स टू इंटीजर एंड y इज अ रियल नंबर। ये जो इनइक्वालिटी आपके सामने आई है इसको बोलते हैं डबल इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी डबल फॉर्म में है, इसके अंदर तीन हमारे पास वो है वेरिएबल पार्ट, तीन हमारे पास इक्वेशंस हैं, उनके बीच में दो साइन लगे हुए। तो क्या करेंगे, इसकी दो हम अलग अलग क्वेश्चन बना लेंगे। पहले हम पहले दो टर्म को ले लेते हैं। यहाँ पे देखो 2y माइनस 3 इज लेस देन y प्लस 1 को कंसीडर कर लिया हमने पहले, 2y माइनस 3 इज लेस देन y प्लस 1, एंड अब बीच वाला जो है टर्म और राइट वाला टर्म उसको ले लेंगे y प्लस 1 और 4y प्लस 7 को, y प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 4y प्लस 7। दो हमने क्वेश्चन बना लिए एक क्वेश्चन के अंदर से, इनको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। बीच में क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे, क्योंकि हमें जो सॉल्यूशन चाहिए वो ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे, ठीक है ना, हमें इंटरसेक्शन चाहिए एक्चुअली। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये y इधर आ जाएगा 2y के पास, तो y बचा, और माइनस 3 राइट साइड में 4 हो गया, तो y लेस देन क्या हो गया, 4 हो गया, y लेस देन 4 हो गया, पहला आंसर आ गया। और सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, y को हम 4y के पास ले गए तो 4y माइनस y 3y हो गया, 7 को इस साइड में लाएंगे तो माइनस 6 हो जाएगा, और y को फ्री करना है तो y के साथ 3 लिखा हुआ है, तो y इज मल्टीप्लाइड बाई 3, सो बाई डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3 द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। तो यहाँ पर जो हमें आंसर लिखा हुआ है वो एज इट इज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -6/3, और यहाँ पे हो जाएगा 3y/3, साइन हमारा सेम रहेगा। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आ जाएगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है y ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब हमारे पास देखो दो सॉल्यूशन है, एक तो हमारे पास सॉल्यूशन है जो हमें नजर आ रहा है यहाँ पे y लेस देन 4, और एक सॉल्यूशन हमें नजर आ रहा है y ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो आप क्या करो, आप यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाओ आंसर निकालने के लिए। पहले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो एक नंबर लाइन बनाई हमने ऐसे करके,
ठीक है। अब हमारे पास जो पहला आंसर है उसमें 4 लिखा हुआ है, तो आप 4, और यहाँ पे लिखा है दूसरे आंसर में -2। हमने 2 आंसर निकाले, तो इन दोनों नंबरों को प्लॉट कर लो, -2 पहले आएगा, 4 बाद में आएगा। अब क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि पहला आंसर क्या शो कर रहा है कि y लेस देन 4, तो y लेस देन 4 हम देखते हैं कौन सा रीजन है, y लेस देन 4 हमारा ये वाला रीजन है। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कौन सा रीजन है, y की वैल्यू -2 से बड़ी कौन सी है, ये वाली, y ग्रेटर देन इक्वल टू -2 ये रीजन है। तो हम देखते हैं कि हमारा आंसर जो है, कॉमन आंसर हमें कहाँ नजर आ रहा है, तो हमें कॉमन आंसर हमें यहाँ नजर आ रहा है बीच में। तो वो चीज इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी कि y इज लाइंग बिटवीन -2 एंड 4, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन 4, दोनों आंसर्स को कंबाइन कर दिया, मतलब इंटरसेक्शन निकालना था, कॉमन आंसर निकालना था। तो नंबर लाइन पे अगर हम देखेंगे तो जल्दी से आंसर पता लग जाता है हमें, जो भी कंडीशन इनइक्वालिटी आ रही है उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो और वहां से पता लगा लो आंसर। अब देखो -2 और 4 के बीच में, अब जो हमारा पहला सॉल्यूशन सेट बोला इन्होंने, इंटीजर्स की बात कर रहे थे, तो इंटीजर कौन कौन से हैं -2 और 4 के बीच में, -2 के साथ इक्वल का साइन लगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, जब हम हायर क्लास में जाते हैं तो ये कहते हैं कि जो इक्वल का साइन है उसके लिए हम एक सर्कल बनाएंगे क्लोज्ड, इसको क्लोज सर्कल बोलते हैं। और जो 4 है उसके साथ इक्वल का साइन नहीं है तो इसको एक सर्कल बनाएंगे ओपन, इसको ओपन सर्कल बोलते हैं। तो इससे हमें पता लग जाता है कि हमें जो आंसर है उसमें किसको इंक्लूड करना है और किसको इंक्लूड नहीं करना है ग्राफिकली। तो -2 को इंक्लूड कर लिया हमने, तो -2 तो आएगा ये आंसर में क्योंकि वो इंटीजर भी है। तो सॉल्यूशन सेट हमारा कौन सी फॉर्म में आएगा, इंटीजर्स के केस में रोस्टर फॉर्म में आएगा। तो आंसर क्या होगा, -2, फिर -2 से आगे चलो, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ओपन है तो 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन सेम क्वेश्चन के अंदर अगर हमारा सॉल्यूशन सेट जो है, रिप्लेसमेंट सेट रियल नंबर अगर दिया है, जो रिप्लेसमेंट सेट अगर रियल नंबर दिया है तो सॉल्यूशन सेट आपको मालूम है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा, तो हमारा आंसर एज इट इज कॉपी हो जाएगा, y such that y is lying between -2 to 4 where -2 is included and y belongs to real number. This is again a very important question. इसके बाद हम एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है एक्सरसाइज में आप सीधा हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उस प्रॉब्लम को विद इन नो टाइम उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।